आप सभी लोग एक्साइटेड हो? Okay. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is already possible. Good evening, everyone. A warm welcome to each one of you as we come together for orientation program 2025 to 2027. It is indeed a moment of pride and joy to have you all here today, and we are excited to embark on this wonderful journey of learning and togetherness. I'd like to extend my warmest congratulations to each one of you for stepping into the new world of Resonance Adventures Private Limited, where dreams transform into reality, where the dream of IIT and NEETs turns into reality. Starting each day, believing in your dreams, know without a doubt that you were made for great things. With this quote, I extend a heartfelt welcome to our respected faculty members, dear supportive parents, and lovely caring students. Without further ado, let's begin this special academic session 2025 to 2027 with a ceremonial traditional ritual of lamp lighting. The act of lighting a lamp holds deep culture. The act of lighting a lamp holds a deep culture and a symbolic significance. It is not merely the illumination of flame, but the lighting of our spirits, aspirants, and collective vision. I would like to request Honorable Chemistry Faculty, Mr. Murari Sir, Physics Faculty, Mr. Ravindra Sir and Radhikant Sir, Biology Faculty, Mr. Mahendra Sir, and English Faculty, Mr. Faz Sir, to enlighten the lamp of knowledge and wisdom. So dear YCCP faculty members, please come forward and enlighten the lamp of knowledge and wisdom. I request relevant parents to join us in lamp lighting. With this, let's continue to honor India. So now it's time for national anthem. So everybody, please join us in this. शुभ नामे जागे
इसको लॉक करें। हेलो, thank you everyone for your presence and participation in Saraswati Vandana, lamp lighting and national anthem. Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience and the passion to reach for the stars and to change the world. If you want to change the world, start within yourself. Now with this quote, moving ahead in today's program, it's my distinct honor and privilege to introduce someone whose visionary leadership and commitment have been the driving force behind the success of Resonance Adventures Private Limited Samastipur, Honorable Director Mr. Yash Gupta. We are very thankful to Mr. Yash Gupta who bring us such platform in Samastipur for your career growth and provide you the golden opportunity to transform your dream into the reality. Unfortunately, he is not able to attend today's orientation program. So with this, now I would like to invite Mr. Prasant sir to share his valuable insights on the academic session 2025 to 2027. मैं प्रशांत कुमार आपको रेजोनेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो पीपीटी के माध्यम से हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। रेजोनेंस जो कि कोटा का एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है जो आईआईटी और मेडिकल्स का प्रिपरेशंस के लिए जाना जाता है, जो 2001 से लगातार पूरे इंडिया में अलग अलग ब्रांचों के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंजीनियर और डॉक्टर्स का प्रिपरेशन करवा चुकी है। अभी समस्तीपुर में भी आप देख रहे हैं। इनको आप जानते होंगे, यह है हमारे जीतू भैया जो कि एक आईआईटीएन है और ये वेब सीरीज़ भी बनाते हैं। पंचायत वेब सीरीज़ आप लोगों ने देखी है? पंचायत वेब सीरीज़ जिसके वजह से ये अभी फेमस है। ये भी रेजोनेंस से ही थे। रेजोनेंस का 25 इयर्स कंप्लीट हो गया अभी ये वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये रेजोनेंस ने अपना 25वां ईयर्स कंप्लीट किया है, जिसमें 11 लाख स्टूडेंट्स के आसपास इन्होंने प्रिपेयर किया है। रेजोनेंस के फाउंडर डायरेक्टर हमारे आर.के. वर्मा सर यही हैं, जिन्होंने बीटेक आईआईटी मद्रास से 1994 में कंप्लीट किया और ये रेजोनेंस के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक फिजिक्स के सीनियर फैकल्टी भी है। रेजोनेंस अपने कैरियर में देखे हमारे यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में दिखाया जा रहा है कि जेईई एडवांस में 52,000 से ज़्यादा लोगों को सफलता पाया है। रेजोनेंस में जेईई मेंस में 2.57 लाख, नीट यूजी में 22,000, एनटीएसी में 2,440 स्टूडेंट्स ने सफलता पाया। केबीपीवाई एंड ओलंपियाड, सीएसीएस, क्लैट इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रेजोनेंस ने अपना कंट्रीब्यूट्स दिया है। नेक्स्ट, ये रेजोनेंस का कोटा का जो हेड ऑफिस है उसका ये इमेज है, जो रेजोनेंस कोटा का हेड ब्रांच है। अब यही हमारे आर.के. वर्मा सर है, जिनके बारे में अभी मैंने बताया था आपको
जो एक टीचर भी है, मेंटर भी है और एक एंटरप्रेन्योर भी है। इन्होंने द IITM नेक्सस जो कि इनका वहाँ पर पार्टिसिपेशन है, उनमें इनका नेक्स्ट ये हमारे समस्तीपुर रेजिडेंस का कुछ तस्वीर है। ये हमारा रिसेप्शन लाउंज है, ये हॉल है, ये हमारे डायरेक्टर सर का केबिन है, ये गैलरी है, ये हमारा रेजिडेंस का टी-शर्ट्स है, ये हमारा क्लासरूम है जो कि कंप्लीट ऑफलाइन है। ये हमारे बच्चों द्वारा कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि टाइम टू टाइम करवाए जाते हैं, उनके कुछ तस्वीर है। हमारे गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन में कुछ तस्वीरें हैं। थैंक यू। Thank you, sir, for describing about this. Let's get an overview about resonance. As you all get to know, we are in the market or in EdTech from last 25 years. And in these 25 years, we achieved and we produced a best result for IIT and NEET. So now moving to the next slide, have a look to the our inauguration program and annual events. So it's a mesmerizing picture from our annual program and inauguration events. Next. Have a look to the glimpse of our inauguration event. Next. We are inspired with few of our leadership who supported us in this EdTech platform. Now this picture represents about the Saraswati Puja celebration. This picture is collected from the Holi celebration as we are celebrating the Holi feast or the other feast. The main motive behind this mesmerizing events to make an environment which is full of other experience, like we are providing the incredible environments to the students so they can enjoy apart from education something new. This video is from our entrance area where we are taking the, representing the retina scan for the safety and security purpose of the students. Once your children entered into our premises, you will get an automated message through WhatsApp that they entered, they arrive and they depart from Resonance. Now it's time to explain about the academic division. So I would like to invite biology faculty, Mr. Mahendra sir. Good evening. Am I audible? Good evening students. थोड़ा लाउडर. आपकी क्लास के लिए पहला लेक्चर है नहीं, तो पहले दिन ही ऐसा लगेगा तो फिर कैसे होगा. गुड इवनिंग. रेजोनेंस के बारे में सर बता रहे थे. रेजोनेंस क्या है? रिसेंटली 11 अप्रैल को हमने 25th हमारा एनुअल डे सेलिब्रेट किया था. मीन्स रेजोनेंस 25 साल का हो चुका है.
इन 25 साल की जर्नी में 2001 से शुरुआत से लेके आज 2000 हम लोग 25 तक पहुंच चुके हैं। इन 25 ईयर्स में रेजोनेंस 90 प्लस अपने सेंटर लॉन्च कर चुका है एंटायर इंडिया के अंदर। एकेडमिक सेशन की बात करते हैं तो रेजोनेंस किस से डीलिंग करता है? रेजोनेंस डीलिंग करता है डिफरेंट एग्जामिनेशन को लेके। रेजोनेंस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था स्पेशली जेई के लिए, जेई मेंस और एडवांस के लिए। जब जेई की स्टार्ट हुई तो पहली ईयर में इतने अच्छे रिजल्ट आए, फिर धीरे धीरे ये एक थॉट प्रोसेस होती है। जो बच्चा पहली बार अपनी लाइफ में 10th स्कूलिंग करने के बाद पहली बार 11th में जब कोचिंग में जाता है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज सामने आती हैं। उनको इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होता है, तो उसी के लिए फाउंडेशन स्टार्ट किया गया जिसे हम कह देते हैं PCCP जूनियर डिवीज़न, जो हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर से कंटिन्यूसली रनिंग में है। और मोर देन 150 स्टूडेंट लास्ट ईयर थे और इस बार 200 प्लस स्टूडेंट हमारे पास PCCP में हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे PCCP से बैठे हैं अभी, जिन्होंने सोचा है, और कुछ और आएंगे जब 10th का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद। उससे पहले ये सिनेरियो आता नहीं है कि करना क्या है, तब तक सोचते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। तो जेई एडवांस, जेई मेंस के बाद PCCP स्टार्ट किया गया था। उसके बाद थोड़ा वक्त में दूर आने के बाद अप्रोक्स 2008 के आसपास रेजोनेंस ने लॉन्च किया मेडिकल डिवीज़न, नीट डिवीज़न। इनके अलावा कॉमर्स के अंदर ये सारे जो एक्स्ट्रा कॉमर्स है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, DLPD जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ये सारे के सारे प्रोग्राम कोटा से रनिंग होते हैं। इनके लिए किसी फ्रेंचाइजी पे अलग से नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर समस्तीपुर में चाहते हैं कि रेजोनेंस एक कॉमर्स के लिए इंस्टीट्यूट खोले तो वहाँ से अलग डीलिंग होती है, वो कॉमर्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो बेसिकली समस्तीपुर में जो है वो 3 सेगमेंट के लिए, पहला है PCCP डिवीज़न जो हमारी जूनियर विंग होती हैं। उसका मेन मोटो क्या है? जो बच्चा क्लास 6th से अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ पढ़ने लगेगा तो एक बार सोचिए, आफ्टर 10th 11th 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है तो डेफिनेटली उसका माइंड थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है। एक वो बच्चा जो 10th तक स्कूलिंग करने के बाद 11th में आया है, उसको इन मॉड्यूल को समझने के लिए, इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को समझने के लिए वक्त लगेगा। और सोचिए 6, 7, 8, 9, 10 में जो बच्चा स्टेप बाय स्टेप आ रहा है तो उसके पास 10th तक आते आते 11th में आते आते इतना नॉलेज होता है कि उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने का सलीका पता होता है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं रेजोनेंस जो प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं हर एक इंस्टीट्यूट की, हर एक स्कूलिंग की, इवन हर एक फेस्ट की कोई ना कोई तो टेक्निक होती होगी। ठीक वैसे ही रेजोनेंस लेके आता है, इनका टीचिंग मेथडोलॉजी थोड़ा अलग है। सबसे सुपीरियर जो स्टडी मटेरियल माना जाता है वो रेजोनेंस का माना जाता है। किसी भी इंस्टीट्यूट के मुकाबले अगर बात करें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बच्चे लगा ही नहीं पाते। जिन्होंने जूनियर यहाँ पढ़ा है उन्होंने देखा है कि एक्सरसाइज 2 तो बनती ही नहीं है, उसको बनाने के लिए थोड़ा सा थॉट प्रोसेस और हैवी चला जाता है। तो कौन कौन से ऐसे यूनिक डिवाइसेज हैं जो रेजोनेंस प्रोवाइड करवाता है? एकेडमिक टीम, हमारी एकेडमिक टीम का कंप्लीट कंट्रोलिंग होता है कोटा के। बाय कोटा ही सारे के सारे फैकल्टी सेलेक्ट होते हैं, वही यहाँ पहुँचते हैं। जैसे एक बच्चा एग्ज़ाम देता है ना, जैसे एक स्टूडेंट क्या करता है, हर एक चैप्टर के बाद उसकी एक टेस्टिंग होती है, ठीक वैसे ही एक टीचर के लिए रेजोनेंस में प्रॉब्लम यही है कि सबसे पहले एंटायर ईयर 2 ईयर 3 ईयर के प्रोग्राम के अंदर एक सिंगल मंथ के अंदर, एक सिंगल डे के अंदर वो टीचर वहाँ पे टेस्ट को क्वालिफाइड करना चाहिए। देन उसके बाद उसका होता है DR के बाद होता है उसका डेमो। जैसे हर बच्चा हर क्लास में अपने टीचर को जज करता है, आज सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, होगा ना क्लास में बोल देते हैं। तो ऐसे ही टीचर बैठते हैं जैसे अभी आप लोग बैठे हो, टीचर्स के सामने टीचर अपना डेमो देता है, पढ़ाते हैं आप लोगों को, टीचर्स को, कि हाँ ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है क्या। उसके बाद में अगर थर्ड इम्पोर्टेंट जो राउंड होता है वो होता है आमने सामने बैठते, टेबल टॉकिंग होती है, उसमें पता लगाते हैं कि हाँ सब्जेक्ट वाइज कितना नॉलेज है। हो सकता है मुझे एक चैप्टर बड़ा अच्छा आ रहा था, मैं उसको डिलीवर करने में अच्छा कर जाऊँ, उसके बाद वाले में तो बड़ी डिफ़िकल्ट ये प्रोसेस होती है। कितने भी इंस्टीट्यूट है सबके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टीचर्स के लिए जो विगोरस प्रोसेस होती है ना वो रेजोनेंस की होती है।
क्योंकि यहाँ पे विद इन 3 मंथ के अंदर आपको एंटायर 2 ईयर में क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, बच्चों को क्या सिखाना है, वो हमें जज कर लेते हैं कि हाँ ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो एकेडमिक टीम बहुत सॉलिड होती है, मोर देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस सबके साथ होता है, ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। सबको यूनिक बनाने के लिए पहले ट्रेंड करते हैं सारे कोटा हेड सेंटर पे, उसके बाद उनको नेटवर्क पार्टनर जो है, जो हम लोग कंप्लीट इंडिया के अंदर हैं। हेलो, रेगुलर क्लासेस, हर एक क्लास या हर एक दिन रेगुलर क्लासेस का फॉर्मेट होता है। आपके पास पेरेंट्स के पास व्हाट्सएप के ऊपर एक हर सैटरडे संडे एक टाइम टेबल फॉरवर्ड होता है, जिसमें आज मंडे को कौन से लेक्चर फॉलो होने वाले हैं उनकी पहले से प्री डिटेल होती है। DPPs 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, आफ्टर कंप्लीट 1 टॉपिक और सब टॉपिक के बाद DPP मिलती है डेली प्रैक्टिस टेस्ट के लिए कि जो आपने क्लासरूम में स्टडी की है क्या वो कंप्लीटली हमें समझ में आया तो कैसा पता लगाएं। एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, आपको क्लास में 10 सवाल करवा दिए, आपके हिसाब से हो गया नहीं। उसके अलावा आपको DPP मिलती हैं पर डे के कुछ 10 to 20 क्वेश्चंस का एक सेट मिलता है, आपको उसको डेली प्रैक्टिस में लगा के देखना होता है। इट्स अ लाइक अ होमवर्क मिलता है आपको कि हाँ हम ये कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको ये देखना कि हाँ कि ये टॉपिक से इस टॉपिक से आया था, सर से मैं क्लियर कर लूँ एक बार। इसलिए डाउट क्लास लगाई जाती है। उस डाउट क्लास में बच्चे अपने सवालों को लेके आते हैं कि सर ये डाउट आ रहा था, नहीं हो पाया। शीट, सर कोई भी एक शीट मंगवा दीजिए रेजोनेंस की, मॉड्यूल जिसे कहते हैं। जैसे स्कूलिंग में बुक मिलती है ना हमें, यहाँ पे इंडिविजुअल टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको शीट मिलेगी। उस शीट के अंदर फर्स्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसके बाद में आपके IQ को चेक करने के लिए पहले होता है एक्सरसाइज 1 जो इजी होता है, वो सब टॉपिक के साथ लिंक होता है। उसके बाद में आता है एक्सरसाइज 2 जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और एक्सरसाइज 3 होता है हमारा जिसमें PYQs जो नीट डिवीज़न होते हैं या जिन्होंने NSO दिया है, IJSO दिया है, NTSC दिया है, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का वहाँ सेट होता है। तो बच्चा अपने आप को टेस्टिंग कर सकता है कि हाँ मुझे टॉपिक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। डाउट सेशन आफ्टर 3 क्लास के लेक्चर के बाद 1.5 आवर अप्रोक्स 1 आवर का एक डाउट सेशन होता है। उसके अंदर स्टूडेंट अपने टॉपिक जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए, मान लीजिए आज मैं एब्सेंट हो गया या आज मैं क्लास में लेट आया या किसी भी रीज़न से मुझे वो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो अब मैं उस बैकलॉग को कवर कैसे करूं? तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फंडा ये होता है कि वो बच्चा डाउट क्लास में कि टीचर वहीं पे अवेलेबल होता है, वो पर्टिकुलर टीचर से जाके मिल लेता है और उनसे अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे एक फिजिक्स का मॉड्यूल है, सेट है। ऐसे आपको इंडिविजुअल हर टॉपिक के मॉड्यूल्स मिलेंगे जिसे आप बुक कह सकते हैं। इस बुक की स्टडी एकदम डिटेल में करवाई जाती है। पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट अप्रोक्स 21 डेज़ के बाद, अभी तो 11th है तो थोड़ा सा इजी रहेंगे। 11th में तो क्या होता है कि बच्चे आए हैं तो बच्चे बड़े मुश्किल से निकल के आते हैं 10th के बाद कि सर डॉक्टर बनना है, JEE में हमें इंजीनियर बनना है। तो स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ तक तो हम लोग लेते हैं मंथली एक टेस्ट ले पाएंगे ताकि बच्चों को थोड़ा स्पीड स्लो होती है। बाद में 21 डेज़ के ऊपर एक टेस्ट होता है। एक होता है कंपार्टमेंट टेस्ट जिसमें अप्रोक्स 2-3 सब टॉपिक को मिला के टेस्ट बनता है, और एक होता है पीरियोडिक टेस्ट जिसमें ये कह सकते हो कि आप पार्ट टेस्ट कह सकते हो। जितना सिलेबस हो गया उतना टेस्ट लिया जाता है, तो लगभग कह सकते हो 20 दिन के ऊपर एक टेस्ट, हर 3 वीक में एक टेस्ट हो जाता है। इस तरह से 24 एग्जामिनेशन तो बाय रिकॉर्ड हो जाते हैं कि हाँ टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं। इसके बाद टेस्ट सीरीज चलती हैं जिसमें 20 मोर देन 20 सेट के पेपर्स होते हैं। बच्चे काफ़ी प्रोसेस से अपनी कर सकते हैं इसमें। एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आफ्टर डाउट क्लास, आफ्टर एकेडमिक टीम, आफ्टर पीरियोडिक टेस्ट, अब ये उस टीम का, उस स्टूडेंट का काम हो जाता है कि अगर मार्क्स कहीं पे डाउन आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो टीचर से मिले, उस पर रिसर्च करें कि हाँ कि कहाँ कमी रह रही है, उसको सुधारने के लिए हम ही कोशिश कर सकते हैं।
बट स्टूडेंट आए तो सही वहाँ तक, आधे बच्चे तो वहीं बैठे रह जाते हैं। जनरली ये होता है स्कूलों में, मैंने हाथ ऊपर किया सर मुझे डाउट है, आधे बच्चे पीछे हंसेंगे, ऐसा ही होता है। कोई शर्म के मारे पूछते भी नहीं है, ना क्लास में पूछेंगे ना क्लासरूम के बाहर पूछेंगे, लेकिन हमें हैबिट डालनी पड़ेगी ये चीज़ों की, ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, सिर्फ क्लासरूम को मैनेज करना, टीचर्स का पढ़ाना यही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है जो आपको क्लासरूम के अंदर, इवन लाइब्रेरी के अंदर जहाँ कहीं पे आप बैठे हो वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट देती है कि आप बैठ के स्टडी करो। जनरली क्या हो गया ना, आजकल जो है मोबाइल फोबिया हो चुका है, आफ्टर कोविड ऐसा ही हो गया है, बच्चों को सामने स्क्रीन पे मोबाइल चाहिए पढ़ने के लिए, ऐसा है। शायद हम में से बहुत सारे पढ़ाई के लिए भी मोबाइल यूज़ करते हैं ना, कुछ बच्चे तो बैठे हैं हाथ ऊपर कर सकते हैं, कर लेते हैं ना। हमारी प्रॉब्लम का सबसे आसान तरीका मिल गया, जो नहीं आया यूट्यूब पे डाला, लीजिए हो गया सर, मार्क्स पूरे आ गए। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि फंडामेंटल क्या लगा था, रट्टाफिकेशन जैसे, उससे हम थोड़ा सा दूर रहेंगे, हल्का सा। जब आपको लगे कि ज़रूरत है तब आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ ट्राई कीजिए ऑफलाइन मोड में स्टडी करें। टीचिंग मेथोडोलॉजी जो अभी हम डिस्कस किया था, कुछ और इसमें ऐड करते हैं। कोर्स प्लानर, कंप्लीट एंटायर ईयर का कोर्स प्लानर फॉलो होता है, जिसके अंदर क्लासरूम लेक्चर्स कितने आने हैं वो डिसाइड होते हैं। स्टूडेंट्स अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बुक एनसीईआरटी आपके पास है, मॉड्यूल दे दिया हो गया काम, नहीं। टीचर्स अपने सेल्फ नोट्स बना के बनवाते हैं, क्लास में स्टडी मटेरियल मिल जाता है, डीपीपी मिल जाती है, होमवर्क असाइनमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट, होमवर्क को चेक किया जाता है, पीरियोडिक टेस्ट लगाए जाते हैं। सीटी और पीटी 2 पार्ट में टेस्ट होते हैं। कोर्स रिवीजन होता है, जब कोर्स पूरा हो जाता है एक बार तो कोर्स रिवीजन भी होता है, और कोर्स रिवीजन के साथ साथ टेस्टिंग भी फॉलो होती है। टेस्ट देंगे तभी तो पता लगेगा कि मार्क्स आ रहे कि नहीं आ रहे। मार्क्स आएंगे तभी ये लगता है कि हाँ बच्चे स्कोरिंग कर पाते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस, इंडिविजुअल हर एक लेक्चर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस की फॉर्म में होता है। अभ्यासम रिपोर्ट, अभ्यासम रिपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए अपार्ट फ्रॉम दी सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम दी टेस्ट के अलावा बहुत सारे रेजोनेंस के, जो आपके पास रेजो ऐप होगा, रेजो सर ऐप होगा, उस पर अभ्यासम टेस्ट होते हैं, जिनको आप लोग कंटिन्यूसली दे सकते हैं और ख़ुद अपना स्कोर एनालिसिस कर सकते हैं। रेजो सर है, जैसे प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं, गेम के लिए कर लेते हैं, वैसे रेजोनेंस में एक रेजो सर ऐप बनाया गया है। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए डेवलप किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स जो बाय मिस्टेक लेक्चर नहीं कर पाए या आज अब्सेंट हो गए, किसी भी रीज़न से मान लीजिए हो गया, तो रेजो सर ऐप हमारा ऐप है, जिसके अंदर आपको उन लेक्चर्स की वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। ये सारे के सारे वीडियोस यहाँ के हम टीचर्स के नहीं होंगे, ये हमारे सीनियर टीचर्स, ये सारे के सारे वीडियो होंगे जो कोटा में पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स के क्लासरूम के लाइव लेक्चर्स होते हैं, जो आपको पर्टिकुलर डेट पे अपना टॉपिक मिल जाएगा, उसको देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम जो बच्चे यहाँ आएंगे उनको उनके रोल नंबर के साथ बता देंगे कि आपको कैसे यूज़ करना है। ये हमारा अब तक का कंप्लीट सिनेरियो है रेजोनेंस की, इनिशियल जर्नी से लेके लास्ट 24, इवन 24 के बाद 25 जनवरी अटेम्प्ट भी ऐड कर सकते हो। इसके अंदर अप्रोक्स 100 स्टूडेंट के आसपास 99 परसेंटाइल जो हम कह सकते हैं जेई के लिए आए हैं, और हमारे सेंटर का 96 परसेंटाइल है इस सेंटर का। तो हमारे पास पहला बैच था, उसका जेई का जो जनवरी अटेम्प्ट था उसका हाईएस्ट यहाँ के सेंटर का 96 परसेंटाइल था, एंड ओवरऑल जो 90+ हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनका 100 मोर देन 100 स्टूडेंट्स 99+ परसेंटाइल का रिकॉर्ड है। तो वो इसमें ऐड होके जब अब ये मंथ स्टार्ट हुआ है तो अब नई पीपीटी में आएगा। स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है?
यहाँ के स्टूडेंट का क्या परसेंटेज है? यहाँ के स्टूडेंट्स का परसेंटेज एक हमारा 96 के आसपास है, 96 परसेंटाइल। कंप्लीट जो स्टूडेंट है, जितना बच्चा पढ़ता है, उसका क्या परसेंटेज था सक्सेस रेट? हमारे यहाँ अप्रोक्स 8 to 10 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। एक स्टूडेंट हमारा 96 परसेंटाइल पे था, बाकी 4 स्टूडेंट हमारे 94-95 के आसपास थे। मैं पूछ रहा हूँ कि जितने बच्चे यहाँ कोर्स कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, जो फॉर्म भरने एबल है, फॉर्म भरते हैं IIT का, JEE सब चीज़ का, तो उसमें मतलब कितना बच्चा गया निकला, वो मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो पहला टेस्ट हुआ है ना, अभी और होने वाला, उसके बाद बनेगा सर। वो तो दो अटेम्प्ट होता है ना। अच्छा, 2 अटेम्प्ट होता है, पहले में नहीं होता। पहला लिस्ट अभी नहीं हुआ है? पहला एग्ज़ाम हुआ है, दूसरा अभी होगा। इन दोनों के बाद किसी एक को बेस माना जाता है। अब क्या, पहले तो क्या होता था, NTA ने एक एग्ज़ाम करवाता था, अब 2 एग्ज़ाम करवाते हैं साल में। तो दोनों में जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, मान लीजिए मेरा आज 96 है, कल मेरा 90 आया, तो मैं कौन सा यूज़ करूँ? मैं 96 वाले को ले सकता हूँ। इस टेस्ट के बिहाफ पे किसी को कॉलेज नहीं मिलता। अभी एक और होगा, फाइनल अभी नहीं हुआ। नहीं, 2 टेस्ट होते हैं, ईयरली 2 टेस्ट होते हैं। उसके बिहाफ पे फिर ये स्टूडेंट की चॉइस होती है कि कौन सा रिकॉर्ड उनको यस करवाना है। 2 टेस्ट करवाते हैं, अभी होने वाला है। ये हमारा नीट का डेटाबेस है। अप्रोक्स 22,000 स्टूडेंट्स अब तक नीट क्वालिफाइड कर चुके हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे सर ने पूछा अभी कितने बच्चे हमारे JEE के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए, तो मैंने एक अप्रोक्स सर को बताया कि इतने बच्चे हैं। ठीक ऐसे ही हमारे पास नीट टारगेट में जो बच्चे हैं वो अप्रोक्स 10 स्टूडेंट्स हैं। अब उनका एग्ज़ाम होगा मई के अंदर, तो वो उसके बाद ही बता पाएंगे कि कितने बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर कर पाए। जितना भी कर पाए तो वो डिटेल इसमें आ जाएंगी। ये हमारा एक वीकली प्लानर है, एक वीक में कैसे कैसे क्लास आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, ये है क्लास 11th का है। 11th के बच्चे यहाँ पे हैं ना, 13 के भी होगी, 11th JEE 11th नीट दोनों, ठीक है। तो ये एक प्लानर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मंडे का ओरिएंटेशन यहाँ लिखा हुआ है, कल ट्यूसडे है, तो फर्स्ट लेक्चर 9:30 मॉर्निंग में स्टार्ट होगा। पहला केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। ये एक हर एक संडे पे हर एक वीक के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। बच्चे इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करके आते हैं कि हाँ आज ये क्लास होने वाली है। और लास्ट में एक सेंटेंस, बड़ा कम होता है कि सक्सेस 1 सेकंड में मिल जाती है, ऐसे किसी को नहीं मिलती। उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके एक स्टूडेंट, एक पर्सन कह सकता हूँ कि सक्सेस कंप्लीट हो पाता है। ऐसा तो बहुत कम होता है ना कि हाँ मैंने टॉस किया और ये लो सक्सेस मेरे हाथ में आ गई। उसमें भी 2 प्रोबेबिलिटी हो गई, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। तो ये एक थर्ड प्रोसेस में चलता है। सक्सेस डज नॉट हैपन, इट्स प्लानिंग। प्लानिंग करनी पड़ती है। एक लॉन्ग प्लानिंग के बाद उसका रिजल्ट जब आता है वो और भी शानदार होता है। Now I would like to invite someone who deals with the practical aspects along with the bookist knowledge, who always play with the reactions and formula. I would like to invite chemistry faculty, Mr. Murari sir, to share a valuable information and knowledge with you all. Yes, good evening everyone. हाँ भाई, कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं। अभी आप सुन रहे थे अपने बायोलॉजी फैकल्टी को, मैं आपके सामने केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। चलिए मैं देख पा रहा हूँ कई बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो मैं पहले कुछ बोलने से पहले बच्चों से ही कुछ सवाल पूछ लेते हैं। पूछें बेटा, रेडी हैं देने के लिए? कितने लोग इसमें नीट वाले हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। शाबाश। कितने लोग JEE वाले हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। अच्छा, JEE वाले आज कम आए हैं, बाकी एडमिशन दोनों में बराबर है लगभग। चलिए, मैं सर अभी नीट के बारे में बोला, मैं JEE के बारे में कुछ बातें करूंगा आपसे। बताइए बेटा,
जेई में कितने स्टेप में एग्ज़ाम होता है बताइए, प्लीज़ रेज योर हैंड और बता क्या बोलते हैं उसको, बोलिए बेटा। एक बच्चा खड़ा होकर बताइए। जेई मेंस, राइट। चलिए अगला सवाल आप ही बताइए। जेई मेंस का क्वेश्चन जो सेट होता है, राइट, क्वेश्चन क्या है, जेई मेंस का जो क्वेश्चन सेट होता है वो कौन कंडक्ट करवाती है जेई मेंस, बता सकते हैं? क्वेश्चन समझ में है क्या? यस, लगभग सही है। क्या बोला आपने, बोलिए बेटा। एनटीएस या एनटीए? एनटीए बेटा, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो नीट का भी क्वेश्चन, वेरी गुड, नीट का भी क्वेश्चन सेट करती है और आईआईटी मेंस का भी क्वेश्चन सेट करती है। पहले ये काम सीबीएसई करती थी, लेकिन आप न्यूज़ में देखा होगा उसमें कई बार जो है धांधली, स्कैम वगैरह हुआ, तो फिर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनटीए बनाया गया, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। चलिए बेटा, दूसरा सवाल है, आईआईटी एडवांस कौन कराती है, बताना जरा। क्या एनटीए ही कराती है या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कराती है, बताइए बेटा। खास करके जो जेई एस्पायरेंट हैं वो स्पेशली बताइए, बता सकते हैं? ऑप्शन दो क्या मैं? ऑप्शन दो बेटा। पहला ऑप्शन है, दो क्या ऑप्शन? अब तो आपको आदत डालना पड़ेगा ऑप्शन वाला, है ना। पहले आप हंस लो थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी देर से सर बोल रहे थे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। टू वे कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, ताकि आपके मन में भी कोई सवाल हो या पेरेंट्स के मन में, उसका भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बताइए, पहला ऑप्शन दो। पहला ऑप्शन एनटीए है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। दूसरा ऑप्शन है आईआईटी कंडक्ट कराती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बोथ, ठीक है। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। जनरली नीट आईआईटी में ये ऑप्शन बहुत पॉपुलर है, नन ऑफ दीज और बोथ। बताइए तो बेटा, एनीवन? चलिए मैं ही बता देता हूँ। आईआईटी एडवांस का जो क्वेश्चन है वो आईआईटी सेट करती है, और मेंस का कौन करती है? एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो नीट का भी क्वेश्चन सेट करती है, राइट। जैसे, और इसमें भी क्या है, इस बार का 2025 का आईआईटी कानपुर, जानते हो आईआईटी कानपुर कहाँ है? जैसे हर साल आईआईटी जैसे डिफरेंट आईआईटी क्वेश्चन सेट करती है। जैसे इस बार आईआईटी कानपुर सेट की है, अगले साल रुड़की, है ना, ऐसे करके डिफरेंट आईआईटी हर साल क्वेश्चन फ्रेम करती है। आईआईटी कानपुर में क्यों पूछा? आप सोच रहे होंगे कि क्यों पूछा भाई, आईआईटी कानपुर जानते हो आप। फिजिक्स में कौन सा बुक बनाते हो जनरली? 11-12 में कौन सा पॉपुलर बुक है, बताना बेटा। एस.सी. वर्मा। मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा ही नहीं होगा या जिसने कभी फिजिक्स में 11-12 पढ़ा होगा तो ज़रूर एस.सी. वर्मा सुना होगा। आपको पता है एस.सी. वर्मा कहाँ के हैं? कैन एनीबडी आंसर? होम टाउन ऑफ एस.सी. वर्मा सर, कोई बता सकता है? कहाँ के? बिहार में। कहाँ सर? दरभंगा के हैं बेटा, यहाँ से बिल्कुल पास है। ही इज़ फ्रॉम दरभंगा, बिहार। आप समझिए, इंडिया का कोई ऐसा कोचिंग नहीं, कोई ऐसा आईआईटी एस्पायरेंट नहीं, कोई ऐसा फिजिक्स फैकल्टी नहीं जो एस.सी. वर्मा से वंचित हो। आपको आईआईटी करना है तो एस.सी. वर्मा तो पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिए कितने साल पहले उन्होंने लिखा, आज तक चल रहा है ना। और आपको पता है आईआईटी कानपुर जो मैं बार बार कह रहा था, पता है कुछ साल पहले वो कहाँ पढ़ा रहे थे? आईआईटी कानपुर में। अभी रिटायर किया है सर ने। तो आप बताइए, आपके बिहार के हैं कौन? एस.सी. वर्मा सर। आईआईटी कानपुर, अगर आप करीबन 5-10 साल पहले आईआईटी कानपुर में पढ़ते तो आप बिल्कुल जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे पहली क्लास आपकी किनकी होती? एस.सी. वर्मा सर की। में इस साल कितने बच्चे अपीयर किए हैं, बता सकते हो? आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम कितने बार दे सकते हो आप? 2 बार। बेटा मेंस 6 बार, मतलब 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आप दे सकते हैं। मतलब 12th के साथ, फिर ऐसा नहीं कि गैप देंगे, 3 लगातार साल में आप 6 बार आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। और एडवांस केवल कितना बार?
2 बार। समझ में है? बोलिए, इस बार कितने बच्चे आईआईटी मेंस में बैठे थे? बताइए। जो आईआईटी एस्पायरेंट है उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए जानने की। अप्रॉक्स हाँ, लगभग 13-12 लाख है ना स्टूडेंट अपीयर्ड, राइट। अब बताइए एडवांस में कितने बच्चे बैठते हैं? आईआईटी में साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी और एक बार अप्रैल, राइट। और उसमें जो कौन से टॉप बच्चे, कितने बच्चे बैठते हैं एडवांस के लिए, बता सकते हैं आप? जो टॉप 2.5 लाख है ना, जो टॉप परसेंटाइल में जो सबसे ऊपर 2.5 लाख स्टूडेंट है ना, ये बैठते हैं किसके लिए? आईआईटी एडवांस के लिए। और 12th में भी मार्क्स होना चाहिए, पता है कि नहीं सब लोग? नीट में आप एक सिंपल सा 50% 40%, लेकिन आईआईटी में 12th का भी मार्क्स इम्पोर्टेंट होता है। जनरल कैंडिडेट 75% गुड, या 20 या क्या आना चाहिए 20 टॉप 20 परसेंटाइल में मार्क्स होने चाहिए, राइट। बोलिए। फिर उसके बाद टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट उसमें अपीयर होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आईआईटी के बारे में। सर ने जैसा यहाँ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ कि रेजोनेंस, पहले बताइए आप लोग में से रेजोनेंस के बारे में कोई 2 लाइन बताएगा क्या? आपके घर में कोई है जो रेजोनेंस में पढ़ा हो? आपके कज़न, आपके एल्डर या आपके अंकल? बेटा 2001 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आप इमेजिन कीजिए 2001, 25 साल पहले, जब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे आईआईटी और नीट की तरफ। अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है इस लाइन में, लेकिन स्टार्टिंग आप सोचिए 2001 में सर ने, जो आर.के. वर्मा सर हैं, जो पिछले साल यहाँ पे आए थे, इस सेंटर का 1 साल कंप्लीट हो चुका है समस्तीपुर में, और ये दूसरा सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो पहला ओपनिंग था उसमें हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं आर.के. वर्मा सर, वो यहाँ पे आए थे आपके समस्तीपुर शहर में, और उन्होंने बहुत उम्मीद जताई कि बिहार के बच्चे जो कोटा जाते थे, क्यों ना हम बिहार में सेंटर डालें और यहीं पे बच्चों को वही सुविधा मिले। और यहाँ और वहाँ में फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे बच्चे को जैसे खाने का दिक्कत है, रहने का दिक्कत है, पेरेंट्स का जो है गाइडलाइन सपोर्ट नहीं मिलता है, क्यों ना अपने ही शहर में कोटा जैसी पढ़ाई कर सकें। तो आप समझिए 2001, 21, 25 साल हमारा पूरा है। हमारा मॉड्यूल, जो सर अभी बात कर रहे थे, मॉड्यूल बिल्कुल आप पता कर लेंगे या आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, मॉड्यूल का लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड है। हम लोग क्वालिटी के साथ 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कई बार कई पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं सर हमारे बच्चे का मार्क्स कम आता है। जैसे आज सुबह सर फिज़िक्स वाले सर थे, हम थे, एक पेरेंट्स यहीं सामने जो है उनका हार्डवेयर का दुकान है, वो आए थे और वो बोल रहे थे कि सर हमारे बच्चे का मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो वो शायद आईआईटी के बारे में उनको नहीं पता था, आज बताए तो वो बोले कि हाँ भाई हम संतुष्ट हुए। वो बिल्कुल 10th की तरह चाह रहे थे कि हमारे बच्चे का 100 में 100 क्यों नहीं आ रहा है। तो भैया आईआईटी में आपको पता है कट ऑफ एडवांस का कितना जाता है, बता सकते हैं कोई? कट ऑफ मतलब मिनिमम मार्क्स टू गेट क्वालिफाइड इन आईआईटी 35% जनरल के लिए, जनरल कैंडिडेट। SC ST के लिए 17% तक जाती है। मतलब आईआईटी एग्ज़ाम का मतलब है, एडवांस का क्वेश्चन का मतलब है। अब पेरेंट्स को नहीं पता था, पेरेंट्स बच्चे पे प्रेशर बना रहे थे, और लकली आज आए और टीचर में हम भी बैठे हुए थे, फिज़िक्स वाले सर भी बैठे हुए थे, और उनका यही ग्रीवांसेस था कि सर हमारे बच्चे का नंबर क्यों नहीं आ रहा है। तो बेटा आईआईटी का मतलब है, जैसे यहाँ पे जो टेस्ट होगी हमारा 25 क्वेश्चन फिज़िक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ, 75 क्वेश्चन, 4 मार्क्स सही होने पे 300 टोटल मार्क्स होंगे। और 300 में जिन बच्चों का पूरे साल में अराउंड 100 के अराउंड मार्क्स आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन 100 से थोड़ा ज़्यादा कम, तो उनका लगभग हमने देखा इतने सालों से, हमारा खुद का एक्सपीरियंस 10 साल का है इस फील्ड में, कई ब्रांड में पढ़ा चुके हैं। हमसे पढ़ के कई बच्चे आईआईटी कॉलेज, नीट में, मेडिकल कॉलेज में। कुछ साल बाद शायद हम लोग ये कह पाएँ
कि कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज और कोई ऐसा आईटी कॉलेज नहीं है जहां हमारे बच्चे नहीं हैं। तो ये जो टीचर सिस्टम है, एकेडमिक सिस्टम है, बिल्कुल फिल्टर्ड है यहाँ का। सर ने जैसा बताया भी कि कोटा से बिल्कुल फिल्टर्ड होके टीचर्स आते हैं। फिल्टर्ड इन द सेंस कि वो भी एक प्रोसेस से गुजरते हैं तब जाके यहाँ पे आपके बीच आते हैं। और हम लोग शायद बोलने में उतना अच्छा ना हो, एंकर नहीं अच्छे हैं, लेकिन जब आप क्लासरूम में आप हमसे मिलेंगे और केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, बाकी जो टीचर्स हैं, तो आपको मज़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपने सब्जेक्ट को सीखा, पढ़ा नहीं। एक पढ़ना इज़ डिफरेंट थिंग, सीखना इज़ डिफरेंट थिंग। पढ़ने का मतलब और पढ़ाने का मतलब और सीखने और सिखाने का मतलब अलग होता है। जैसे मेरे पास बहुत नॉलेज है बेटा, और मैं आऊँ बोर्ड पे बिल्कुल नॉलेज का बम्बार्डमेंट कर दूँ आपके सामने, आपको देख के लगेगा कि नहीं भाई, टीचर के पास तो बहुत नॉलेज है, लेकिन आपके कोई पल्ले पड़ नहीं रहा है। एक हो गया सिखाना, मैं बिल्कुल आपके अंदाज में उतर जाऊँ, समझ रहे हो, आपको समझूँ और आपके अकॉर्डिंग आपको समझाऊँ, सिखाऊँ। हम अपने से ज़्यादा आपको पहले समझें, राइट। जैसे मान लीजिए डॉक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन वो पेशेंट के सिम्टम को समझा ही नहीं, तो क्या उसका नॉलेज अप्लाइड होगा? क्या बीमारी ठीक होगी? बताना बेटा, नहीं होगी। तो बिल्कुल हम लोग ट्रेंड होते हैं, कई सालों का अनुभव होता है, हमें बिल्कुल पता होता है कि बच्चे को कैसे सिखाना है। पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा लेगा बेटा। आजकल रिसोर्स के नाम पे हर चीज़ अवेलेबल है नेट पे, फिर भी ऑफलाइन इंटरेक्शन इज़ फार बेटर देन ऑनलाइन। वाई? मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूं और मैं आपसे ऐसे रूबरू बिल्कुल ऐसे बात करूं, क्या दोनों में फ़र्क है बेटा? अरे फ़र्क है कि बहुत फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। एक सबसे बड़ा फ़र्क है बेटा कि एआई की दुनिया में हम सब काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये फिज़िकल में अपन फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं आपका। जैसे मैं आपको रीड कर सकता हूँ, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, कई बार हमारे साथ व्यक्तिगत हमारे साथ भी हुआ, पहली क्लास में हम पढ़ा के निकल गए, बच्चा आया बाहर, बोला सर कुछ समझ में ही नहीं आया, तो फिर तो बेकार है भाई, समय भी गया। तो हमारा फिजिकल क्लासरूम में क्या है कि बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन, बच्चों के आई कांटेक्ट से हम समझ जाते हैं कि इस चीज़ को दोबारा समझाना है या दूसरे तरीक़ा से समझाना है, या स्पीड बढ़ाना है या स्पीड को स्लो करना है। ये सारी चीज़ें फिजिकली संभव है। क्या ऑनलाइन में संभव है बेटा? और ऑनलाइन में तो बेटा साइड इफ़ेक्ट भी है, सिर दर्द है, आँख का पावर, दो चश्मा लग जाएगा फालतू में, नहीं कई सारे, मैं उस पर, बाकी तो लोग समझदार हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो यहाँ भी आप जैसे इंटर किए होंगे, मोबाइल सीज हम लोग करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं? बच्चा कब यूट्यूब पे पढ़ने के क्रम में कब टेक्स्ट में आ जाता है, कब चैट में आ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। आज का रील भी है, नहीं फॉलोवर देखता है, लाइक देखता है और पढ़ाई से काफ़ी दूर हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट ऑफलाइन है बेटा। और सबसे बड़ा जो यूएसपी है इस कोचिंग का, एक मॉड्यूल हमारा इंडिया का बेस्ट मॉड्यूल है, आईआईटी में इसका जोड़ा ही नहीं है, इसके बराबर कोई नहीं है। दूसरा हमारा कंप्लीट ऑफलाइन है। तीसरा हमारा डाउट सेशन है। डाउट सेशन का मतलब है कि जो आपने अभी देखा, जैसे कल से हम आपसे मिलेंगे क्लास में एक अलग रूप में, तो वहाँ पे बेटा 3 सब्जेक्ट आपका पर डे होगा। 1.5 आवर का पहला क्लास मान लो फिजिक्स हुआ, दूसरा केमिस्ट्री हुआ, तीसरा मैथ या बायो हुआ, राइट। तो 1.5 घंटे का 3 क्लास हो गया, 4.5 घंटे का क्लास हो गया, बीच में 10-10 मिनट ब्रेक हो गया, ऑलमोस्ट 5 घंटे का क्लास होगा। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा सारे टीचर्स अवेलेबल रहेंगे आपको डाउट काउंटर पे। आपको उस दिन का कोई डाउट, मान लो क्लास में कोई बात, आप कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, कई बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग फ्रंट पे पूछ नहीं पाते हैं, कई लोग अकेला में ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। तो उनके लिए डाउट काउंटर बना है बेटा कि अगर आपको क्लास की बातें नहीं समझ में आ रही है या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो डाउट काउंटर पे बड़ा इजीली आप 2 वे कम्युनिकेशन टीचर के साथ रख सकते हैं। आप अपनी डाउट रख सकते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, कोई दूसरा बुक घर पे पढ़ के आया, उसके डाउट है, वो भी अपन डील करते हैं, राइट।
पढ़ाने के क्रम में हम कई बातों का ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको सिखा दें कि बेटा बाइक ऐसे चलाना है, ये गियर है, ये क्लच है, पूरा थ्योरी आपको लिख के 2 पेज पे दे दें और बोले जाओ बाइक चलाओ, क्या आप एक अच्छा ड्राइवर बन सकते हैं? अच्छा ड्राइवर के लिए थ्योरी कम, क्वेश्चन ज़्यादा। अभी के बच्चों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सिलेक्शन ना होने का। थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन से दूर भागते हैं, न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं। कईयों का गणित 10th तक इतना कमज़ोर होता है कि न्यूमेरिकल देख के ही रोने लगते हैं। लड़कियों का खास करके प्रॉब्लम है, नीट वाले का प्रॉब्लम है। तो फिर उनके लिए हमारा सिस्टम जो है स्टार्टिंग में ही मैथमेटिकल टूल्स करके पढ़ाते हैं अपन। जो केमिस्ट्री में मैं ही हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो हमारे में लॉग का इस्तेमाल होता है, तो मैं केमिस्ट्री का हूँ फिर भी आपको लॉग पढ़ाएंगे। फिर भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा, वो सर आपको वहाँ भी डील करेंगे, स्टार्टिंग में डील करेंगे। मतलब हमारा टारगेट सीधी है कि आपको सिखाना है, आपको अपने हुनर से पहचान कराना है और आपको सिलेक्शन दिलवाना है। हमारा इस शहर में 1 ही साल हुआ है, लेकिन हमारे पास बच्चे अच्छे नहीं आए। क्यों नहीं आए आप बेहतर समझते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास, जैसे सर ने कहा, 8 और 10 स्टूडेंट ही थे हमारे पास ड्रॉपर में। अब हमारे पास नए सेशन में अच्छे बच्चे कैसे आएंगे? जो हमारे यहाँ 9th-10th किया है तो उनको हमने बेसिक से ही इतना क्लियर किया। स्टार्टिंग से ओलंपियाड के क्वेश्चन करा रहे हैं, स्टार्टिंग से मॉड्यूल सॉल्व करा रहे हैं, स्टार्टिंग से उसके सोचने का एटीट्यूड बदल रहे हैं। तो वो बच्चा जब हमारे पास 11th में आएगा तो वो हमारी बातों को बेहतर परफॉर्म करेगा और उसको मार्क्स में तब्दील करेगा और धीरे धीरे रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। पहला साल हमारे पास दिक्कत, जो बच्चे हैं अभी भी बैठे हैं डाउट में, उनका यही है कि सर हमारा बेसिक्स इतना कमज़ोर था कि हम उतना कर नहीं पाए। लेकिन हम समझ लिया है सब कुछ, लेकिन हम परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि प्रैक्टिस समय कम होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है। तो गार्जियन से भी अपील है कि बच्चे को आप 8, 9, 10 से ही एक अच्छा माहौल दें कम्पिटिटिव, तब वो बच्चा एपियरिंग में आराम से रिजल्ट देता है। रिजल्ट ऐसा नहीं कि हम बेहतर करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसी काम को अलग ढंग से करने की ज़रूरत है। किसी फील्ड में सफल होने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सही तरीका पकड़ने की ज़रूरत है। इरादा नहीं बदलिए, तरीका बदलिए। इरादा नहीं बदलिए, क्या बदलिए? तरीका बदलिए। कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो सवाल में प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हमारे किस में प्रॉब्लम है? मेथड में प्रॉब्लम है। हमको कहीं ना कहीं मेथड पकड़ना पड़ेगा, और जिस दिन आपने सही मेथड पकड़ लिया तो कोई माई का लाल तुम्हें सेलेक्ट होने से रोक, क्योंकि बेटा जो सेलेक्ट होते हैं वो आप ही के बीच के होते हैं, वो किसी और प्लेनेट से नहीं आते हैं, और जो सेलेक्ट करवाते हैं वो हमारे जैसे लोग ही होते हैं, किसी और प्लेनेट से नहीं होते हैं। इसी भीड़ में कोई बच्चा 2 साल बाद नीट का रिजल्ट लेके हमारे पास आता है, इसी भीड़ में कोई बच्चा 3 साल बाद रोता हुआ कहता है कि सर आप सही बोल रहे थे, आज हमें बातें समझ में आई। और ऐसा नहीं कि जो टीचर्स होंगे आपको केवल पढ़ाएंगे, बेटा आपको वक्त पे मोटिवेट भी करेंगे, आपको आने वाले मुश्किलों से रूबरू भी कराएंगे, आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वैसे तो मैंने बहुत कुछ बोल लिया है ना, अंत में कुछ और कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा तो बताइए। हाँ बोलिए बेटा। राइट, मैं सवाल समझ गया, कितने टीचर्स होंगे? राइट, बैठ जाइए। चलिए, गुड क्वेश्चन है ना। देखो बेटा, पहले तो हर सब्जेक्ट में हमारे पास 3, जैसे कि फिजिक्स में हमारे पास आपके क्लास में 3 टीचर होंगे, राइट। 2 टीचर यहाँ दिख रहे हैं, सर हैं फिजिक्स में, राइट। केमिस्ट्री में भी 3 टीचर होंगे, ठीक है। एक ऑर्गेनिक के बिल्कुल स्पेशलिस्ट होंगे जो केवल ऑर्गेनिक डील करेंगे आपको, राइट। एक होंगे जो फिजिकल पूरा डील करेंगे, ठीक है, और एक और टीचर होंगे। तो 3 टीचर केमिस्ट्री में, 3 टीचर फिजिक्स में, 2 टीचर आपको मैथ में होंगे, राइट, और 2 टीचर ऑब्वियसली बायोलॉजी में होंगे। एक क्या पढ़ाएंगे बताओ, समझ गए होगे, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और कोई बेटा कुछ पूछना था? पूछिए बेटा। ये 2 वे कम्युनिकेशन, वाई हम लोग क्यों ओरिएंटेशन रखते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं क्लास में इंटर करते हैं? ताकि आप कुछ बात बोल सकें, हम कुछ समझा सकें। नहीं, बोलिए। और किसी को कुछ पूछना हो बेटा? जैसे एक सवाल ये भी आता है
पुराने ओरिएंटेशन में। अभी कई ओरिएंटेशन होना है, जैसे ये हमारा पहला बैच है, फिर 10-20 दिन बाद हमारा रिज़ल्ट, 10th रिज़ल्ट के बाद दूसरा बैच स्टार्ट होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमारे बच्चों को बोर्ड करना है, ठीक है, मान लो आईटी हो गया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम बोर्ड। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आईटी नीट कर लिया और बोर्ड में फेल हो गया। एक ये सवाल। दूसरा, सर क्या सर आप एनसीईआरटी डील करते हो कि नहीं? ये सवाल लगभग ओरिएंटेशन में आता है, तो मैं इस पे भी बोल दूँ बेटा, जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो जैसे थ्योरी पढ़ाया, राइट, तो क्लास में ही वो लिख देंगे पॉइंट, इट इज़ रिटन इन एनसीईआरटी, इट इज़ आस्क्ड इन 2024 इन आईटी एडवांस, इट इज़ अ PYQ ऑफ नीट 2016, ठीक है। मॉड्यूल डिस्कशन होगा और एनसीईआरटी 12th में लाइन बाय लाइन आपको कराया जाएगा। सब्जेक्टिव पैटर्न की 12th में प्रैक्टिस अलग से टेस्ट होगी और 12th का सिलेबस हमारा नवंबर-दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। 2 महीना अलग से बोर्ड की प्रैक्टिस होगी। बोर्ड के बाद जब आप आएंगे तो आईटी के लिए जो गैप बचेगा उसके लिए तैयार करेंगे। कुल मिला के मैं आपको एक बात बिल्कुल आश्वस्त कर दूं कि हमारा सिस्टम 1 साल 2 साल का नहीं है कि कोई आए फूंक दे और गिर जाएगा, या हम ऐसे ही नहीं कि आपके बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारा 11 अप्रैल को 25 साल पूर चुका है, तो हम 25 साल से इस काम को करते आ रहे हैं। तो आप जो पूछेंगे बेटा, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम हर साल करते आ रहे हैं, हमें पता है। हम पहले आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे, हम आपको पहले उस चीज़ों से रूबरू कराएंगे और हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे देंगे, राइट। बिल्कुल आप देखो 25 साल का, ऐसा नहीं, गूगल कर सकते हैं आप, 25 साल का सिस्टम है। और हर चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर ने अभी दिखाया आपको कि कोर्स प्लानर और कोर्स लेक्चर होगा, मतलब कोटा पूरे साल का। जब आप यहाँ पे आएंगे कुछ दिन में आपको मॉड्यूल मिलेगा और एक कोर्स प्लानर मिलेगा, मतलब पूरे साल में किस चैप्टर को कब पढ़ाना है, कितने लेक्चर में पढ़ाना है, ये टीचर के पास भी होगा, स्टूडेंट के पास भी होगा। कब कितना टेस्ट होना है, पूरे साल का प्लानिंग होगा, किस चैप्टर को कितना लेक्चर देना है, राइट, कितना टेस्ट कब होना है, सब कुछ आपका प्लानर के अकॉर्डिंग होगा। और इंटरेस्टिंग बात, पूरे जो हमारा 90 सेंटर हैं, जिसमें एक ये है जो कोटा में पढ़ाई होगा बेटा। जैसे मैं अभी 11वीं में आपको मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, तो जो मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मान लो मेरे को 8 लेक्चर मिला है मोल कॉन्सेप्ट में, राइट, तो मोल कॉन्सेप्ट 8 लेक्चर में पूरे इंडिया में वही सेम चलेगा। और फिर जो टेस्ट होगा 21 दिन बाद, उसमें क्वेश्चन कहाँ बनेगा, कोटा के हेडक्वार्टर में क्वेश्चन बनेगा और वही क्वेश्चन पूरे 90 सेंटर पे होगा और वही क्वेश्चन आपको देना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे बेटा? बोलो। तो हर चीज, एवरीथिंग इज ओरिएंटेड फ्रॉम कोटा सेंटर, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड फ्रॉम कोटा सेंटर। हमारे ऐसा नहीं कि हम चाहेंगे कुछ करने का, नहीं। एक और बहुत अच्छी बात सर ने बोला कि जनरली क्या होता है कि कई टीचर आते हैं, अपना बेस्ट पार्ट पहले दे दिया, एक चैप्टर पढ़ा दिया, आपको बहुत मज़ा आ गया कि हाँ सर भी अच्छे, टॉपिक भी अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आगे जाके फिर गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए टीचर का पहले ही टेस्ट वहाँ हुआ रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टीचर का रिटन, डेमो, हर चीज़ हुआ रहता है। मतलब उस टीचर का हर चैप्टर पे पकड़ होना चाहिए, हर चैप्टर मतलब रिटन पे भी अच्छा होना चाहिए, समझाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आजकल बच्चे को इंटरेस्टिंग टीचर चाहिए। इंटरेस्टिंग मतलब समझ रहे हो ना, बोरिंग टाइप का। कई बच्चे यहाँ देख भी रहे हैं बड़ा घूर के, नहीं कि भाई इंटरेस्टिंग मतलब आपको, मतलब 1.5 घंटे की क्लास है भाई, ऐसा तो मजाक है नहीं। 10th का जब आप 11वीं का 2-4 चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि 10th एक रात का कमाल था, मात्र 10th एक रात में अपन कर सकते हैं। जब आप MBBS फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास कर लोगे तो लगेगा प्रिपरेशन एक रात का। बिल्कुल वैसे जैसे गेम में जब हम 7th लेवल पे जाते हैं तो हमें लगता है 1 लेवल तो कुछ था ही नहीं, तो बिल्कुल वैसा ही है बेटा। 10th की पढ़ाई में आप बहुत सीरियस थे, आपको वही डराता था। 12th 11th पढ़ लोगे तो लगेगा 10th कुछ नहीं है। MBBS फर्स्ट ईयर या IIT का सेमेस्टर पास करोगे तो लगेगा प्रिपरेशन कुछ नहीं है, और जब फाइनल ईयर MBBS कर लोगे तो फिर लगेगा ये कुछ नहीं है। फाइनल छोड़ो, MD MS के लिए PG का एग्जाम दोगे तो पीछे वाला कमज़ोर लगेगा, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे तो पीछे वाला। बिल्कुल इधर भी है, नहीं है। IIT में BTech करने के बाद आप IAS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंजीनियर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, आप गेट में बैठ सकते हैं, राइट।
तो बहुत स्कोप है। लेकिन सबका निचोड़ यही है बेटा कि 11वीं और 12वीं की पढ़ाई आपको बिल्कुल दिल से करना पड़ेगा, हर चीज़ को सीखना पड़ेगा। और आप यकीन मानिए कि 11वीं 12वीं की पढ़ाई आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लिया तो आप कभी बेरोज़गार नहीं हो सकते हैं, आप असफल नहीं हो सकते हैं। जहाँ भी जाइएगा आप पीक पे रहिएगा, आपका डंका बोलेगा। सहमत हैं? और ऊपर से देखिए, आज से 10 साल पहले छोटे शहर में बड़ा कोचिंग नहीं था, फैसिलिटी नहीं था, तो पेरेंट्स को पैसा भी ज़्यादा लगता था, बाहर जाना पड़ता था। आज आपके अपने शहर में कोचिंग है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और बिल्कुल कोटा वाला सिस्टम यहाँ फॉलो होगा 100%। एवरीथिंग विल बी रेगुलेटेड फ्रॉम कोटा सेंटर। बोलिए, कोई दिक्कत? चलो मैं एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी सर भी है, कई लोग बोर भी हो गए होंगे, है ना। और कल से अपन 1.5 घंटे की क्लास भी लेंगे, सारे टीचर आपके साथ होंगे, ठीक है। कल से सबको आना है, राइट। रूटीन भी मिल जाएगा। माजी तेरे कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की मकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड लक, मिलते हैं कल। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे फिज़िक्स के सर जो हरियाणा से हैं, बहुत ही। चलिए सर, आप खुद बताइए अपने बारे में। Thank you, sir. Good evening, all of you. My name is Ravinder Kunal from हरियाणा। डायरेक्ट कोटा से आए हैं बेटा, है ना। और 7 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, वेदांतु, PW हो गया, बहुत सारे कोचिंग पढ़ा चुके हैं। एज से नहीं लगेगा, है ना। हाँ, तो अभी तक जितना मतलब अप्रोक्सीमेट हमारे बायो के सर ने, केमिस्ट्री मुरारी सर ने अप्रोक्सीमेट सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो हमारी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और इसका जो कल की डेट कोटा पहुंच जाएगी प्लानर के अनुसार, और उसके बाद जो बच्चा लेट आएगा वो अपना खुद का नुकसान करेगा। इसलिए सभी बच्चे रेगुलर आए क्लास के अंदर। और एक हवा जो होता है सबसे ज़्यादा, हमें ध्यान से फिजिक्स में सबसे ज़्यादा सुना जाता है कि जैसे कि हमारे चाहे जेई के बच्चे हो चाहे नीट के बच्चे हो, वो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर उनको लगता है कि नहीं लगता? ऐसा सुना होगा, अभी तो नहीं लगता होगा क्योंकि अभी 10th क्लियर करके आप आए हैं। तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है सिर्फ साइंस करके, राइट। उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, बायो का भी थोड़ा पोर्शन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा, लेकिन अब वो तीनों पोर्शन अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी तक तो आपको मज़ा आया होगा फिजिक्स को पढ़ने में, राइट, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट पार्ट है, सिंपल डेफिनेशंस हैं, है ना। लेकिन उसका जो थोड़ा सा डरावना रूप है वो अक्सर पता नहीं हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कर रखा है कि वो +1 में ही इंक्लूड कर दिया। इजी जो पार्ट है वो हमारे पास थोड़ा 12th क्लास के अंदर जाकर के फिजिक्स इजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू 11th क्लास, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल पार्ट है आपका बेटा, और वो है आपका 11th क्लास, ठीक है। यदि आप 11th क्लास के अंदर रेगुलर क्लास में आते हैं, रेगुलर अपने टीचर से कनेक्ट रहते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं, क्लियर है, तो आपको फिजिक्स में कमांड करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जब आपकी फिजिक्स अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आपको तो तीनों सब्जेक्ट में ही करना है, मैथ हो चाहे बायो हो, है ना। लेकिन फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा जो आपका सोचने का तरीका है, माइंड, है ना, थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर आपको डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं, उसमें से गिवन डाटा भी आपको निकालना है, फाइंड डाटा भी आपको निकालना है, और फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं, कुछ दिन में आपके भी आने स्टार्ट होंगे, है ना, अगर रेगुलर क्लास में नहीं आएंगे तब, कि सर हमें फॉर्मूलाज याद नहीं होते। और एक चैप्टर हुआ, क्योंकि अब 10th के अंदर 10 यूनिट है हमारे पास, और 12th के अंदर भी 10 यूनिट है, टोटल 20 यूनिट है, राइट। तो उसमें सभी फॉर्मूला को याद रखना बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स होती है जो रेगुलर स्टडी नहीं करते। अगर जैसे कि मान लो कि एक नीट का स्टूडेंट, अब उससे पूछा जाए कि आप जब मेडिकल में, हॉस्पिटल में जब जाते हैं और जब डॉक्टर आप उससे चेकअप करवाते हैं डॉक्टर से, तो वो आपके लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है कि नहीं लिखता? तो क्या वो सोचता है क्या कि कौन सी दवाई दूँ? ऐसे सोचता है क्या? नहीं सोचता ना। तुरंत चेक किया, तुरंत उसने अपनी चिट बनाई और आपको आपके हाथ में दे देता है कि ये दवाई आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा।
और बच्चा क्या करता है, आप भी तो डॉक्टर बन रहे हैं ना, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो लेकिन वो बैठ करके फॉर्मूला सोचता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सी यूनिट का है। तो मतलब आपको इतनी खतरनाक तैयारी करनी होगी कि आपको पेपर के दिन ये बैठ करके ना सोचना पड़े कि मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। आपका IQ लेवल इतना फास्ट होना चाहिए कि आपको जो पढ़ा दिया गया वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, और उसके लिए एक ही ऑप्शन है, बादाम खाना नहीं है। ये नहीं है कि आप बादाम खाएंगे तो आपके IQ लेवल बढ़ जाएगा, उससे प्रैक्टिस, मेहनत। अपने मोबाइल से, टच से दूर रहिए कि मोबाइल जितना यूज़ करेंगे आपका IQ लेवल नीचे जाएगा माइंड का। तो अच्छा मम्मी के द्वारा बनाया गया खाना खाइए, और सिर्फ नोटबुक और बुक आपको सब रेफ़र कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी, सिर्फ वो आपके पास 2 साल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि राम को भी भगवान अपने आगे लगवाने के लिए, भगवान राम बनने के लिए भी 14 साल का वनवास काटा। आपको 14 साल नहीं काटना है, सिर्फ 2 साल काटना है, ठीक है। और 2 साल में आपको आपके सपने, आपके पेरेंट्स के सपने, सब कुछ अचीवमेंट होगा। और पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का रिजल्ट टाइम टू टाइम देखते रहे, लेकिन उनको डीमोटिवेट ना करें कि अगर कहीं माइनस में नंबर आ जाए, 0 नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, तो ऐसा ना करें कि वो पढ़ ही नहीं रहा है। ये पढ़ाई एक डिफरेंट है। जैसे कि एक बच्चे को LKG में, UKG में फर्स्ट टाइम हम भेजते हैं, जैसे कि उसको काउंटिंग सीखना है 1 2 3 4, उसी तरीके से यहाँ से उसकी एक नई लाइफ स्टार्ट होती है, जिसको एक नई लैंग्वेज वो यहाँ से सीखता है। तो मतलब अभी तक क्या पढ़ के आया वो थोड़ा बहुत मैटर करेगा, लेकिन यहाँ से एक नई लैंग्वेज सीखेगा और माइंड की ग्रोथ उसकी धीरे धीरे होगी। अप्रोक्सीमेट उस माइंड ग्रोथ करने में हमें भी आप लोगों की 2 साल लग जाएंगे। और जो बच्चा पीछे थोड़ा ठीक ठाक रहा है, पेरेंट्स ने ध्यान दिया है, अच्छे स्कूल से, बोर्ड से पास आउट है, उस बच्चे को तैयार करने में हमें भी थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को टाइम टू टाइम क्लास की टाइमिंग से 20 मिनट या 10 मिनट पहले क्लासरूम में पहुँचाएँ, ठीक है। टाइम टू टाइम खाना देख करके पूछाएं कि उसको यहाँ करके फास्ट फूड वगैरह ना खाना पड़े, कि स्वस्थ शरीर से ही बच्चा यहाँ पे स्टडी कर सकता है, ठीक है। नहीं, यहाँ बच्चे कुरकुरे खाते हैं, फिर 2 दिन बीमार हो गए, है ना, फिर वो लॉट ऑफ रीजंस हमें क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं फिर आकर के कि बच्चा सर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। और हम सर ने जैसा कि बताया कि हमारे मॉड्यूल्स का लेवल हम नहीं गिरा सकते। ये नहीं है कि पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाने के लिए हम अपना लेवल गिरा देंगे, क्योंकि सभी IIT नीट के लिए नहीं बने हैं। यहाँ पे जो बच्चा मेहनत करेगा वही IIT नीट निकालेगा, क्योंकि 24 लाख के नियर बाई बच्चे नीट के अंदर बैठे हैं और 13 से 14 लाख बच्चे JEE के अंदर बैठे हैं। और सीट कितनी है मेरे ध्यान से, तो ये एक IAS के एग्ज़ाम से भी हार्ड एग्ज़ाम IIT और नीट का होता है बेटा, तो है ना। तो इसलिए अपनी माइंड थिंकिंग को, पेरेंट्स को भी स्ट्रगल करना है और इनके साथ हम भी अपना पूरा स्ट्रगल करेंगे। और जैसे कि आज तो आप किसी भी एक दूसरे को, जो बच्चे हैं एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन कल से एक बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी क्लासरूम में। उस बॉन्डिंग से थोड़ा दूर रहें कि जब भी आपको डाउट आए किसी भी सब्जेक्ट में कि सर टीचर बोर्ड पे कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई भी डेरिवेशन कर रहा है, अगर आपको समझ नहीं आया तो इंडिविजुअल पूछे कि सर मेरे को नहीं आया। ये ना सोचें कि कौन हंसेगा, कौन रोएगा, कौन आपके बारे में क्या सोचेगा, ये मैटर ही नहीं कर रहा। इंडिविजुअल देखें कि मेरा सिलेक्शन मेरे हाथ में, मेरे को समझ नहीं आया रिपीट करो, चाहे 10 बार पूछें, 100 बार पूछें, उसमें आपको कोई भी टीचर ये नहीं बोलेगा कि आपने दूसरी बार क्यों पूछा, ठीक है बेटा। तो आपकी नई जर्नी के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के आएंगे और हमारे द्वारा दिया गया 1.5 घंटे का लेक्चर पर डे एक सब्जेक्ट में, और उनको तैयार करने के लिए आपको कम से कम, अभी तो मेरे ध्यान से कोई है कि जो 3 घंटे से अबाउ अभी तक पढ़ा हो घर जाके, या पढ़ाई की हो पीछे, है कोई जो 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करता हो? एक बच्ची है, 2, 3 बच्ची हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास फुल स्ट्रेंथ हो चुकी है 11th JEE के अंदर, और इसमें तो अभी तो 3 बच्चे जैसे कि दिखाया कि हम सर 3 घंटे का अप्रोक्सीमेट पढ़े। तो आपको कल से जो ज़रूरत पड़ने वाली है
वो कम से कम ऑन द एवरेज लगा करके चले तो 7 से 8 घंटा आपको स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन उससे घबराए नहीं, उसकी हैबिट हम डालेंगे, धीरे धीरे डाल देंगे 2 से 3 महीने में कि आप 6, 7, 8 घंटे का सिटिंग प्लान देना स्टार्ट कर दें। लेकिन पेरेंट्स भी इस चीज़ पे ध्यान रखें कि आपका बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा। मोबाइल के टच से दूर रखें, क्योंकि आप लोग भी स्ट्रगल करते हैं और साथ हम भी यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। तो मोबाइल कम से कम इनके हाथ में दें, अपने टीचर से ज़्यादा कनेक्ट रहें। इसी चीज़ को लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच Sir and Murali sir, for your valuable knowledge and for providing such guidance to all the students. Now with this, I would like to invite our physics faculty Radhikant sir for his valuable words. At first, good evening for all of parents, students, academics and non-academic team. सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बहुत उम्मीद के साथ आप यहाँ आते हैं। एक बच्चों को एक भरोसे के साथ हमें सौंपते हैं। उस बच्चे का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए, एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप अपने बच्चों को यहाँ हमारे पास रखते हैं। हम उस पर वर्क करते हैं। हमारा जो मकसद रहता है, जो हमारा एम है कि बच्चों को अच्छा रिजल्ट देना है, वही सेम मकसद आपका भी है कि हमारा बच्चा जो है सो बहुत अच्छा रिजल्ट दे, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में सक्सेस हो। बच्चे को एक अच्छे रिजल्ट के लिए, एक अच्छे सक्सेस दिलाने के लिए जितना ज़रूरी टीचर्स के लिए है, उतना ही ज़रूरी एक पेरेंट्स के लिए भी होता है। आज हम इस ओरिएंटेशन के थ्रू हम अपने दिलों की बात करते हैं टीचर्स, एक पेरेंट्स के साथ। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए क्लास में जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है, और एक बच्चे को अच्छे रिजल्ट के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस चीज़ को समझना टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स लोगों का भी है। कुछ पेरेंट्स तो हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं कि लो भाई, मैं अपने बच्चों को दे दिया, एडमिशन करा दिया, पेमेंट करा दिया, अब आप मुझे रिजल्ट ला करके दिखा दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये फैक्ट है। आप जब बच्चों को यहाँ लाते हैं, आप अपने बच्चों को जितना ज़्यादा हम नहीं समझते, अभी तक आप अपने बच्चों को बहुत समझते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे इस तरह का है, इस लेवल का है। हम जब क्लास में एंट्री करते हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मोबाइल का। आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल से जो कनेक्टिविटी बच्चों का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। आप देखिए इसका क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। हमने क्लास में चीज़ों को पढ़ाया, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दिया कि घर से आप बना करके लाओ। बच्चे क्या करते हैं कि घर पे जाने के बाद उस न्यूमेरिकल्स पे दिमाग लगाने के बजाय उसको गूगल से, यूट्यूब से खोज करके उसका आंसर लिख करके चले आते हैं, और ये फैक्ट है। हम बच्चों को सवाल देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं कि बच्चे जाकर के घर पे उसको पढ़ेंगे, उस पर दिमाग लगाएंगे, उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और तब हमारे पास आएंगे। कुछ बच्चे, सभी तो नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं घर गए सॉल्व भी कर लिए क्वेश्चंस को, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ से मिला उसका? मोबाइल से। ये कनेक्टिविटी को सबसे पहले दूर करना होगा। और बच्चे लोगों का क्या एक्सप्लेनेशन होता है पेरेंट्स के साथ। आप अगर बच्चों को मोबाइल देते हैं
तो उनका एक्सप्लेनेशन ये रहता है कि मैं तो उस पर प्रॉब्लम बनाता हूँ, देखता हूँ, जो दिक्कत होता है उसको दूर करता हूँ। अरे भाई, ये आपका एडमिशन इंस्टीट्यूशंस में हुआ है, टीचर उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, मोबाइल तो दूर करेंगे नहीं। और पेरेंट्स भी बहुत अच्छे तरीक़ा से बच्चों के का जो वो क्या कहते हैं इमोशनल को समझ लेते हैं कि नहीं बच्चे ठीक कर रहे हैं। आज हम देखते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों पे ज़्यादा भरोसा करना जानते हैं और करते भी हैं, अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि एक बच्चे को अच्छा बनाने के लिए टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की अहम भूमिका होती है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, पेरेंट्स लोगों का क्या होता है जिम्मेदारी, अगर आप बच्चों के पीछे सिर्फ हाफ एन आवर दे दीजिए, आधा घंटा प्रत्येक दिन, हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स को टाइम भी नहीं मिलता, और ये फैक्ट है। आप आधा घंटा में कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ उनसे ये पूछिए कि आज जो पढ़ाई हुई है, नोटबुक निकालो, आज जो पढ़ाई हुई है आप उसे निकालो और बताओ कि कहाँ कोई दिक्कत भी है, और जहाँ दिक्कत है उसको एक और ये कर दो, पेन से कलर लगा दो, यहाँ हमको समझ में नहीं आया है, उसको सेकेंड डे जा कर के हम पूछ लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, उसी टॉपिक का मोबाइल पे आपके सामने उसी टॉपिक को मोबाइल पे यूट्यूब पे डाल करके वीडियो निकाल लेंगे, जो फैक्ट बात है, और वो आपको दिखा रहे हैं वीडियो चल रहा है। थोड़ी देर के बाद पेरेंट्स हैं, बहुत सारे काम हैं, आप घर पे कुछ काम करने के लिए या तो बाहर चले जाते हैं, अब मम्मी है तो अपना किचन में चले जाती, बहुत सारा है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, उस मोबाइल को ले जा कर के अपने रूम में चले जाते हैं, वो भी शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि वही हॉल में बैठे हुए हैं, वो भी मोबाइल को ले जा कर के रूम में चले जाते हैं, और उस वक्त वो वीडियो भले चले या ना चले, अदर एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, चाहे वो चैटिंग हो, चाहे वीडियो हो, चाहे फिल्म हो, एंड डिफरेंट। और आज के डेट में तो जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट है कि गलत चीज़ों का भी वो शुरू कर देते हैं। देखना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जो है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आए, आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन दिस इंस्टीट्यूशन, इन दिस फील्ड। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी लेकर के आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मेरा जो बच्चा है ना, वो रूम लगा करके पढ़ता है लेकिन नंबर्स नहीं आते हैं। अरे भाई, गेट को लगा करके पढ़ते हैं इतना सीरियस से, फिर ऐसा कौन सा चीज़ पढ़ते हैं जो नंबर नहीं आता भाई, ये भी सोचने वाली बात है। तो आप समझ रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप दूर रखिए, और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा समय दीजिए, और डेली बेसिस पे आप उससे देखिए कि जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है सेकेंड डे वो पूछ करके आ रहा है या नहीं। अगर और स्टूडेंट से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि क्लास में जो भी डिलीवर होता है, जो भी पढ़ाई होती है, उसमें कहीं डाउट्स हैं तो सेम डे आप टीचर से दूर करें। सेम डे टीचर से तभी दूर हो पाएगा जब आप क्लास के बाद आधे घंटा रुकोगे, आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए, प्रॉब्लम पूछ करके अपना टीचर से फिर चले जाइए। सबसे बड़ी चीज़ है बैकलॉग को दूर करना। जब हम क्लास को छोड़ते हैं, क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ डाउट्स हैं, उसको आप टीचर से मिल करके उस डाउट्स को दूर कीजिए, ये ज़रूरी होता है। नहीं तो धीरे धीरे बैकलॉग्स बढ़ते चले जाते हैं और फिर ये निगेटिव में हो जाता है। दूसरी बात कि रेगुलर क्लास करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे क्या करते हैं कि रेगुलर क्लास कुछ नहीं करते हैं और डाउट सेशन में आकर के पूछते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है किसी टीचर्स के लिए, पेरेंट्स आप लोग भी समझ रहे होंगे कि जो लेक्चर डिलीवरेशन क्लास के अंदर होता है, उसी मैनर्स में लेक्चर डिलीवरेशन डाउट सेशन में नहीं हो सकता है। डाउट सेशन में क्या होगा, जो दिक्कत होगी, जो बैकलॉग लगा हुआ है, उसको हम लोग समझाते हैं,
लेकिन जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है क्लासरूम का डेलिब्रेशन का, वो डॉट काउंटर्स पे नहीं हो सकता है, ये भी फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स लोग आते हैं, एडमिशन कराते हैं, टीचर्स के कांटेक्ट में आप रहिए सो दैट कि पता चले कि बच्चे कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं। रिजल्ट्स के बाद आप मिलते हैं, ठीक है, मिलिए, मिलना चाहिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर में आप मिलिए टीचर से, कम से कम उनसे ये तो पूछिए कि हमारा बच्चा का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कितना वो गेन कर रहा है, कितना ये कर रहा है, सो दैट कि बच्चों को भी लगे कि हमारे पेरेंट्स यहाँ आकर के टीचर से कम्युनिकेशन करते हैं। उनके अंदर भी एक डर रहता है कि नहीं, पेरेंट्स मिलते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी नहीं करना चाहिए, एडमिशन कराने के बाद सीधे 2 साल के बाद आते हैं ये पूछने कि रिजल्ट क्या हुआ। बताइए, आप ही एक बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए जहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स मिल करके काम कर रहे हैं, टीचर्स लगातार 2 साल तक उस पर काम कर रहे हैं, पेरेंट्स 2 साल के बाद आते हैं मिलने के लिए, कहते हैं कि रिजल्ट का क्या हुआ। जरा सोचिए, और उनका एक्टिविटी पूछिए कि आपके बच्चे घर पे, कुछ बच्चे तो बहाना भी बना लेते हैं कि हम जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, और इधर उधर से घूम करके घर पहुंचते हैं। कुछ तो ऐसा भी है कि कहते हैं, जो फैक्ट है, जो हम देखते हैं, जो फेस करते आए हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे भी कहते हैं, अरे आज क्या क्लास जाना मम्मा पापा, क्या जाएंगे। डॉट में तो क्लियर हो ही जाता है, डॉट सेशन जब होती है ना, रिवीजन क्लासेस वगैरह, उसमें तो हम सारा प्रॉब्लम दूर कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो रेगुलर क्लास पे एकदम कंटिन्यूटी के साथ करना ये ज़रूरी है। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस दिन क्लास किए हैं अपना डाउट्स उसी दिन क्लियर कर लीजिए, अगर दिक्कत है तो। टीचर्स के प्रॉपर कांटेक्ट में रहिए सो दैट कि आपके साथ कनेक्टिविटी होता है। हम लोग जब क्लासेस लेते हैं तो उस वक्त टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का एक कांटेक्ट बन जाता है। हम आपको डेली होमवर्क दे रहे हैं, आप कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि होमवर्क बनाता ही नहीं है। क्यों? उसके पास बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि सर हम ये सब तो जानते ही हैं। कुछ तो ये भी कह देते हैं कि हम ये सब तो जानते ही हैं, फिर नंबर्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़े हैं लेकिन नंबर ही नहीं आता है। सबसे पहले आप उनको मोबाइल से दूर रखिए, ये ज़रूरी है आज के दिन में। आप देखिए ना, कोरोना से पहले आप किसी बच्चे को मोबाइल देने से डरते थे। घर में मोबाइल था, 1 घंटा के लिए अगर मांगे तो आप भले दे देते थे, लेकिन मोबाइल खरीद करके जल्दी नहीं देते थे कोरोना से पहले। लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ, जो बच्चे कोरोना से पहले 4000 का मोबाइल फ़ोन आपसे डिमांड कर रहा था, आप उसको डायरेक्टली मना कर देते थे कि नहीं देंगे फ़ोन, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। लेकिन कोरोना में क्या हुआ, जो बच्चे 4000 के फ़ोन के लिए आप उसको डायरेक्टली मना कर रहे थे, उसी बच्चे को आप एप्पल का फ़ोन दिला रहे हैं कोरोना में। क्यों? ऑनलाइन पढ़ने के लिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। 15,000, 20,000, 30,000 का फ़ोन दिला रहे थे, वो एक सिचुएशन था, चलेगा। कोरोना में कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, चलेगा, कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ, आप उससे मोबाइल को विड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं किए, धीरे धीरे आदत बन गई। आज देखिए ना, आपके पास भले 10,000 का फ़ोन हो, बच्चे लोगों के पास 25,000 का फ़ोन होता है। हम देखते हैं, हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट होने से पहले फ़ोन को जमा करा लेते हैं कि क्लास के अंदर आप फ़ोन लेकर के नहीं जा सकते हैं। क्या ऐसा काम आप घर पे करते हैं? जरा सोच करके देखिए कि आपके यहाँ फ़ोन जाता है, ठीक है सेफ्टी डिवाइस है, आप रास्ते में देते हैं, आप कहते हैं कि बच्चे लेके जाते हैं, हो सकता है कुछ ये है। लेकिन जब आप घर पे जाते हैं बच्चे, तो क्या आप उनसे फ़ोन लेते हैं? नहीं लेते हैं। आप वो फ़ोन का एप्लीकेशन सब यूज करता है। इसीलिए बच्चों को डॉट्स जो है सो फ़ोन से दूर रखिए, टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, और एक समय पे आप टीचर से मिलिए सो दैट कि हमें ये बताने में सहूलियत हो कि कहाँ कहाँ बच्चा लैग कर रहा है, और उसको बनाने के लिए टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।
बात है ना, आप आओ। आपका गुड नेम? माय नेम इज़ अक्षत कुमार। आपको रेजोनेंस के बारे में कैसे पता चला? मेरे टीचर के थ्रू पता चला था, वही बताए थे। कौन टीचर, कौन सा टीचर? फैट से। ऐसा आपको इंग्लिश वही पढ़ाएंगे सर यस। ठीक है, ऑलराइट। आप टारगेट किस डोमेन में बोल रहे हो? जेई का है। दिस कंप्लीट 1 आवर 30 मिनट के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको सबसे अच्छा सीखने को क्या मिला? अभी सर ने बताया फ़ोन के बारे में, उतना आइडिया था नहीं, लेकिन अभी पता चला कि थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, ज़्यादा हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, तो आप किस प्लेटफॉर्म को चुनोगे और क्यों चुनोगे? मैम टीचर से इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन में, तो सर लोग से डाउट वगैरह इजीली पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना फीलिंग, जो भी डाउट वगैरह कुछ भी। ऑनलाइन में कुछ वही डाउट वाउट होता है तो वो भी थोड़ा उसका भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन का, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। तो लाइक आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के स्टडी मटेरियल, यहाँ के टीचर्स वो आपके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने में आपको कितना हेल्प आउट कर सकते हैं? हम होप कर रहे हैं कि मिले, गाइडेंस अच्छा मिले। मटेरियल देखे थे उसमें अच्छा था, और यूट्यूब पे भी सर्च किए थे तो उसमें बता रहा था कि इसी का सबसे अच्छा होता है रेजोनेंस का। Have a big round of applause for him. Now I would like to call up. Good evening, everyone. आपका good name? My name is Twinkle Sinha. Yes, ma'am. Targeting? JEE. Why you choose JEE? आपने JEE को क्यों चुना? ऐसा कोई मेरा मेन गोल नहीं है IIT में जाने का, बस फ्लो में पेरेंट्स ने कहा कि JEE कर लो, इसलिए। तो ये 1 आवर 30 मिनट का जो ओरिएंटेशन सेशन था, यस मैम, उसमें आपको क्या सीखने को मिला? लाइक आपकी लर्निंग क्या है इस 1 आवर 30 मिनट में? इसमें तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि टीचर भले ही आपको कितना गाइड कर ले, खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद टाइम नहीं दे रहे हैं पढ़ने पे, तो टीचर कितना भी आपको फोर्स करे, पेरेंट्स कितना भी गाइड कर ले, आपका पढ़ाई वेस्ट है। तो बस यही, खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रेजोनेंस को क्यों चुना? Why you choose? एक्चुअली आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ लास्ट ईयर, मैं यहाँ पढ़ चुकी हूँ। तो उस टाइम पे इसके बारे में पता कैसे चला था? पापा ही एडमिशन करवाए थे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।